back to initial position. Get ready for pledge. Take position. India is my country. India is my country. And all Indians are. And all Indians are. My brothers and sisters. My brothers and sisters. I love my country. I love my country. And I am. And I am. Proud of. Proud of. Its rich. Its rich. And varied heritage. And very heritage. I shall always strive. I shall always strive. To be worthy of it. To be worthy of it. I shall. I shall. Give respect. Give respect. To my parents. To my parents. Teachers. Teachers. And all elders. And all elders. And treat everyone. And treat everyone. With courtesy. With courtesy. To my country. To my country. And my people. And my people. I pledge. I pledge. My devotion. My devotion. In their well-being. In their well-being. And prosperity alone. And prosperity alone. Lies my happiness. Lies my happiness. Jai Hind. Jai Hind. Come back to the initial position. Assembly standing. Good evening, everyone. The thought of the day is learning is never done without error and defect. I repeat my thought: learning is never done without error and defect. Thank you and thoughtful day ahead. Good evening everyone. Today's news headlines are as follows. First on international news first. PM Modi attract Mumbai anniversary is 200 anniversary on 40 June. Second on national news month on no Kashmiri Pandit in playing race mandate work fairing target attract. Last some sport news causes of Omicron detected in Mumbai. Second, thoughts in power march at respect pointable Delhi high contract on hate speech. Thank you everyone. Have a nice day ahead. कसी गए चित्रों क्वेश्चंस को बड़ा खानपुर. My speech is Lata Mangeshkar. She was born on 20th September 1929 in a Marathi family of Hindu. His father was Pandit Dinanath Mangeshkar, who was an artist and singer. She carried forward this heritage and started her singing career for Marathi cinema. She learned music from Ustad Bade Gulam Ali Khan, Pandit Tulsidas Sharma and Amanat Khan Devaswal. In year 1989, she was awarded Dada Saheb Phalke and year 201. She was conferred a Bharat Ratna, the highest state honor of India. Thank you. Have a nice day ahead. Karsi Cadre Chinnu Tiwari Coach Science School Ghoda Kalpur. Assembly, there is an announcement. कैसे आप सब? माइक में बोलो तो आवाज़ ज़्यादा आती है और वैसे बोलो तो धीरे. फर्स्ट फ्लोर वालों को मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, कोई बात नहीं, आपको वीडियो भेज दिया जाएगा. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ. ठीक है, जैसे मैंने लास्ट टाइम पे भी आपको बोला था कि रेगुलर टेस्ट सीरीज आपकी ख़त्म हो गई है, तो क्रैश कोर्स के लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए. ठीक है, तो कुछ क्रैश कोर्स से रिलेटेड, कुछ रेगुलर कोर्स से रिलेटेड, कुछ इस बीच में जो आप करोगे उन सब चीज़ों से रिलेटेड बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है, वो मैं वही सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ. सबसे पहले आपने जो आज एग्ज़ाम दिया, एक तरीके से फुल लेंथ एग्ज़ाम था, जिसमें क्या था, जो भी चीज़ें आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगी उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें थी. ठीक है, तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके का बनता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम मिलेगा, आप कैसे सॉल्व करोगे. ठीक है, अब ये इसका रिजल्ट जो है फाइनलाइज नहीं किया जाए, मतलब रिजल्ट हम नहीं बनाएंगे, इसका रिजल्ट
आपको मैथ्स की क्लास दी गई, जिसमें क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैथ्स है, तो मैथ में जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप सेम टाइम डाउट पूछ सकते हैं। अगर और किसी सब्जेक्ट में आपको डाउट आ रहा है, तो जो आपका 2 to 3 3 to 4 में जितने भी बच्चे यहाँ पे होते हैं उनको डाउट क्लास में बैठने का मौका मिलता है, तो आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो आज फुल लेंथ एग्जाम था, ऐसा ही इस वीक में आपका चलता रहेगा। 4 से 6 आपका एग्जाम होगा और 6 से 7 आपका सोल्यूशन होगा। ठीक है, आंसर की नहीं बताई जाएगी, आंसर की आपको व्हाट्सएप की जाएगी, तो आप घर जाके अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको जरूर दें। राइट, अगर किसी को भी डाउट होता है तो नेक्स्ट डे आके पूछना है टीचर से, छुपा के नहीं रखना उसको। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो आपका क्रैश कोर्स है आने वाले मंडे से यानी कि 4 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिए। ठीक है, जो आपका क्रैश कोर्स होगा, हो सकता है उसमें हम एक डे लेक्चर और नेक्स्ट डे टेस्ट करवाएं। ठीक है, तो आपको जो भी पैटर्न होगा ये आपको बता दिया जाएगा। ऑलमोस्ट मैं आपको ये बताना चाह रही थी, 4 दिसंबर है, उस दिन से आपका क्रैश कोर्स शुरू हो जाएगा। तब से 21 जनवरी तक आप लोगों को लगातार प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है, अच्छा रिजल्ट देना है और अपने फाइनल एग्जाम की तरफ बढ़ना है। राइट, नेक्स्ट वन इज जो नया टाइम टेबल है, क्योंकि क्रैश कोर्स शुरू होगा, तो जो हमारे बैच ए बैच बी है 6 में, उसमें थोड़ी सफलिंग होगी। ठीक है, बैच ए के बच्चे बी में जा सकते हैं, बी वाले बच्चे ए में आ सकते हैं, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस शीट है वो बताएगी कि उसको ए में रखना है या बी में रखना है। ठीक है, तो क्रैश कोर्स में थोड़ी सफलिंग भी होगी, तो बच्चे प्रिपेयर रहें, अच्छा करें। राइट, और टाइम टेबल में भी कुछ चेंज होगा, वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो टाइम टेबल आपका क्रैश कोर्स का जो CCP मतलब कोर्स कंप्लीशन प्लान है वो, और जो आपकी सफलिंग है, बैच में बैठना, ये सारी चीज़ें ही चेंज होंगी क्रैश कोर्स में। राइट, नेक्स्ट वन इज आपका जो नवंबर मंथ का PTCM है वो नहीं हुआ है, तो जो हमारा लास्ट सैटरडे होगा यानी कि 22 दिसंबर को सैटरडे होगा, तो उस दिन PTCM भी होगा। ठीक है, पेरेंट टीचर मीटिंग जो हम करते थे वो भी होगा, और उसमें आपके बारे में, आपकी फीडबैक के बारे में चर्चा की जाएगी। तो आप लोग ये अपने घर में बता सकते हैं कि 2 दिसंबर को क्या होना है, PTCM होना है। ठीक है, नेक्स्ट है जो आपका लास्ट टाइम PTCM हमने करा था, PTCM, तो उसके जो फीडबैक है वो आपको भेजे जाएंगे। ठीक है, मतलब वो आज या कल में आपको भेजेंगे, तो आप लोग उससे एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज जो बच्चे मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले मम्मी ने हमको बोला था कि जो आपकी मॉर्निंग की कॉपीज हैं वो सेपरेट और इवनिंग की कॉपीज हैं वो सेपरेट होनी चाहिए। तो अब उनके पास बहुत सारी कॉपीज जा रही हैं, और बहुत सारे लोगों का ये फीडबैक था, बहुत सारे लोगों की ऑब्जर्वेशन की, टीचर्स की, स्टाफ मेम्बर्स की, कि बहुत ज़्यादा बैग भारी हो जा रहा है, तो बच्चे वो लोड मतलब बहुत ज़्यादा लोडेड हो जा रहा है। तो जो बच्चे मॉर्निंग से इवनिंग तक आ रहे हैं उनका बैग बहुत ज़्यादा लोडेड हो जा रहा है, तो आप लोग क्या करिए, इवनिंग और मॉर्निंग की सिर्फ एक ही कॉपी रखिए। राइट, जैसे इवनिंग में आपने मैथ्स की बनाई, मॉर्निंग में भी मैथ्स बनाई, तो उसको कंपाइल कर दीजिए, मतलब एक ही कॉपी होगी जिसमें आप मॉर्निंग में भी काम करेंगे और इवनिंग में भी काम करेंगे। समझ गए सभी? और आपकी बुक्स होंगी, और जो आपकी एडिशनल कॉपी, रफ कॉपी, प्रैक्टिस कॉपी होती है वो होंगी। समझ गए? तो इवनिंग और मॉर्निंग की जो सब्जेक्ट वाली कॉपीज है वो कंपाइल कर दीजिए। नेक्स्ट जो हमारा असेंबली का टाइम है, बेसिकली 10 से 15 इससे 20 मिनट हमारे असेंबली में चले जाते हैं। तो क्रैश कोर्स के टाइम पे जो टाइम होगा हमारे पास बहुत कम टाइम होगा, और उसी टाइम पे हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी। ठीक है, तो उस टाइम पे जो असेंबली होगी उसको हम स्किप कर सकते हैं। मतलब असेंबली टाइम पे भी आप क्या करेंगे, क्लास ले लेंगे, और क्लास के बाद डायरेक्ट डिपार्चर होगा। तो मतलब 7 बजे तक आपकी क्लासेज होंगी, 7 से 7:05 जो भी हमारा टाइम होता है डिपार्चर का, उस टाइम तक आपकी क्लासेज भी चल रही हैं। राइट, नेक्स्ट RAMC का मैंने आपको बताया था कि RAMC का एग्जाम होने वाला है 2 दिसंबर को, और बहुत सारे बच्चे यहाँ से जाने वाले हैं, और उसके लिए मैंने आपको मोटिवेशनल एक्सपीरियंस बताया था। तो कुछ कैडेट्स ने अभी इन्वॉल्वमेंट कराया, अभी बहुत सारे कैडेट्स ने नहीं कराया। अगर जो भी अभी इन्वॉल्वमेंट कराना चाहता है तो आप लोग आज तो वैसे ऑलमोस्ट स्कूल खत्म हो गया, तो आज में अगर कोई कराना चाहता है तो करा सकता है, अदरवाइज कल भी आपका दिन है, आप लोग बता सकते हैं कि आपको जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, तो आप लोग इसलिए इन्वॉल्व करा सकते हैं। सैनिक स्कूल का फॉर्म फिलिंग जो कि 16 दिसंबर तक होना है, जिन कैडेट्स ने नहीं कराया अभी भी तो आप लोग करा सकते हैं। 16 दिसंबर लास्ट डेट है, याद रखिएगा। जो जिनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं कंप्लीट है तो रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट करा लीजिए, ताकि आपको फॉर्म फिलिंग में प्रॉब्लम ना हो। राइट, नेक्स्ट फुल लेंथ एग्जाम के बारे में मैंने आपको बता दिया है। हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर जो सैनिक स्कूल के हैं वो भी आपको कराए जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको क्या पता चलेगा कि पेपर एक्चुअली पेपर कैसा होता है। प्रीवियस ईयर में मतलब पहले जो एग्जाम हुए उनमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे, किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एक ये मिल जाएगा कि आपको रिवीजन करने में कौन से चैप्टर का ज़्यादा रिवीजन करना है, कौन से क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। तो जो हमारा क्रैश कोर्स का ड्यूरेशन होगा उसमें जितने भी संडेज होंगे, लगभग 5-6 संडेज आपको मिलेंगे, तो आपको 5-6 वो प्रीवियस ईयर पेपर करवाए जाएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस
प्रीवियस ईयर पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ओएमआर में होगा या जैसे आज स्टूडेंट पेपर किया वैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्रैश कोर्स से पहले बता दी जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग ये माइंड में रखिए कि क्रैश कोर्स में आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी कराए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ जिन पे आपको सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैडेट अभी भी ऐसे हैं जो यहाँ पे आते हैं, अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं मिलता। मतलब आपने क्या सीखा, लास्ट में जो भी जैसे आए थे वैसे चले गए, या अपना तो कुछ नहीं सीखा, दूसरे को भी डिस्टर्ब किया। तो इस चीज़ के लिए आप लोगों को कुछ चीज़ें सोचनी चाहिए कि हम यहाँ पे क्यों गए, क्यों आए हैं। तो उसके लिए मैं कुछ पॉइंट कुछ सेंटेंस यहाँ पे बोल रही हूँ, तो उन पर आपको एक थॉट प्रोसेस देना है, मतलब सोचना है कि ऐसा, मतलब इसका क्या मीनिंग है, ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं बोल रही हूँ। पहला है थिंक वाई यू केम हियर, मतलब तुम यहाँ क्यों आए हो यहाँ पे, ये तुमको सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिमेंबर योर गोल, तुम्हारा गोल क्या है तुम्हें सोचना है, तुम्हें पता है तुम्हारा गोल क्या है। तो उसके लिए जब तुम सोच सकते हो, कर सकते हो, तो उसके लिए एफर्ट भी लगाना, राइट। नेक्स्ट डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बी सेल्फ सुपरवाइज, बी सिंसियर। मतलब ये कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिनको आप सोचोगे तो आपको खुद से मोटिवेशन मिलेगा कि आपको करना है, आपको मेहनत करनी है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप की तो भेज दी जाएगी। लास्ट एंड फाइनल जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अभी थोड़ा मौसम जो है थोड़ा ठंडी में परिवर्तित हो गया है, मतलब ठंडी के दिन आ गए हैं। कुछ बच्चे अभी भी मतलब बहुत ज़्यादा वेल ड्रेसअप नहीं होके आते, मतलब कि ठंडी के टाइम में कौन से कपड़े पहने चाहिए आपको भी बहुत अच्छे से पता है। अगर नहीं पहनोगे तो क्या होगा, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। तो कोल्ड से बचना है, क्योंकि आपका फाइनल एग्जाम बहुत ज़्यादा पास है। अगर बीमार पड़ जाओगे तो आप क्रैश कोर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। क्रैश कोर्स में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो एक तरीके से आपकी जो प्रैक्टिस है, जो एग्जाम है, वो नहीं बन पाएगा। तो आप लोगों को ठंडी से बचना है, मॉस्किटो से बचना है, और कैसे बच सकते हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें बातें ध्यान में रखनी है, और जो भी अभी चल रहा है, आपकी जो भी क्लासेस हो रही है, उसको बहुत अच्छे से हार्ड वर्क करना, मेहनत करनी है, राइट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। Assembly, attention, तेज बोलो, ऊपर वाले फोन को बोलो। get ready for national anthem. पहल बाजी जी। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। Assembly, get ready for slogan. Take position. भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।